दरवाजे पर दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। ओ, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। Hi, hello everyone. I'm Anjali and I welcome you all today for our sixth session of Gyan Setu Katta, Know Your Country, that is Chhattisgarh. So, since 2013, our volunteers are going to developmentally challenged states of India to connect with them and build the bridge of science. Since that last year, as we all are aware, because of Corona, we did not get a chance to visit these states personally. So, because of this, we have started this digital initiative where we try to connect to these different states and to interact with people that are working on the grassroots level to curb the challenges faced by these states. So, talking about Chhattisgarh, in 2017, we visited Sukma district of Chhattisgarh. That was our first time, and where we lived with children in Pota cabins and taught them science filled with fun experiments, and which was very interesting. So, we will learn more about this state today. And so, before going there, we thought that we are going to teach them, but when we went there and we were returning, we got to know that what we learned was something that we will cherish all our lives. So many such experiences and facts will be discussed here today. So now get ready to watch a video that which is made by our Gyan Setu team, which will sum up some interesting facts about Chhattisgarh. The state of Chhattisgarh was carved out of Madhya Pradesh in the year 2000. The immensely dense forest and a huge tribal population impact the state with a rustic tinge, which is apparent in its tribal dance forms, songs, and natural beauty and bounty. Chhattisgarh is known as Dhan Ka Katora, means rice bowl of India. We have scrapped together some interesting facts about this magnificent state. Let's have a look. Tribes of Chhattisgarh. Chhattisgarh is one of the states with majority of tribal population. Scheduled caste and scheduled tribes taken together form 50% of the population. Home to famous Kosa silk. Kosa silk, a variety of Tussar silk. It is famous world over for its texture and hue and is produced in Korba and Champa in Chhattisgarh from cocoons on Arjun, Sal and Saja tree. The Niagara Falls of India. Chitrakoot Fall. It is a horseshoe-shaped waterfall in Bastar district. It is known as the Niagara of India as it appears wider due to its structure. The Grand Festival of Chhattisgarh, Bastar Dashera. It is one of the biggest festivals here. The people worship a local deity, Ma Danteshwari, and the festival lasts for 75 days. The reputed Music University of Chhattisgarh, India's first university dedicated to music and dance. The Indrakala Sangeet Vishwavidyalaya is located at Khairagarh in Chhattisgarh. The Shaki wonder called Jaljali. It is a unique place as anyone who jumps here can create an earthquake. In Sri Satya Sai Sanjeevani Hospital, Raipur, child heart surgery and heart diseases is treated for absolutely free of cost.
Also, the state has high sex ratio of 991 per thousand, putting it at 5th among Indian states. Economy is mainly driven by the mineral resources of the state. It ranks first in coal production. So we welcome you to the land of forest, Chhattisgarh. So now we are aware of the amazing culture with respect to awesome nature, their culture, silk, etc. But just like any other state, even this state faces a lot of challenges. Also, the people in these states try hard to curb these challenges. Now let's watch another video which shows us the challenges faced by the state and people who are trying hard to curb the challenges. Many of the people in Chhattisgarh live in hard to reach terrains. Most of the districts are not connected by rail and roads are damaged or not even made. Chhattisgarh have most conservative tribes. They do not even know how to communicate with outsiders. 75% of the population live in village areas. Many of them do not have a proper school, hospital or other infrastructural facilities. The strong presence of Naxalites in 12 of 18 districts with the national base in Bastar. One of the best way to curb Naxalism is by educating the youth and improving infrastructure in economically backward districts. Organizations like Shiksharth in Sukma and Bachpan Banao in Dantewada are working towards improving the quality of education in the conflict-affected tribal areas in Chhattisgarh. The health and nutritional problems are most common in tribal population of Chhattisgarh. Here, the tribes following old tradition of going to Baba instead of going to hospital. But now because of IS officer like Dr. Ayaz Tambodi, who changed the face of healthcare in Naxal hit Bijapur district, and Dr. Ramchandra Godbole with his wife introducing community health initiatives to empower the Bastar's Adivasi communities since 1990s. Chhattisgarh is one of such states in India where you get to explore all geographical aspects under one roof. But its natural beauty was neglected because of negative media coverage and Naxal conflict. Now the social startups like Unexplored Bastar is giving a new identity to the land of dense forest, magnificent waterfalls and vibrant culture. Definitely, we will see many more innovative changes happening in near future, which will change our image of backward and Naxal affected Chhattisgarh to most beautiful and progressive state. So now we know both the boons and banes of the state. So now going forward, we'll have a fun activity to know that what we have learned with respect to with the help of a poll. So I request Sanchit to carry the poll activity. So, from which state Chhattisgarh was carved out in the year 2000? Options are Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, and West Bengal. Second question is, which of the following waterfall is known as the Niagara Fall of India? Options are Rajpuri Waterfall, Amrit Dhara Waterfall, Chitrakoot Waterfall, and Mandwa Waterfall. So its right answer is Chitrakoot Waterfall that we see in the video. The third question is, Chhattisgarh ranks first in production of. Options are iron ore, bauxite, limestone, or coal. The right answer is iron ore. So here is the result. And most of the of you are given right answers. Thank you very much. The first question is, what is accounted as the chief economic occupation of the state? And the options are tea production, oil extraction, agriculture, and electronics. Yes, you can answer the question. Yes, I will go to the second question now. The second question is,
Which of the following is not a reason for health and nutritional problems in Chhattisgarh? I repeat the question. Which of the following is not a reason for health and nutritional problems in Chhattisgarh? And the options are: depends on monsoon for rains, most of the districts are not connected by proper roads, lack of medical facilities in rural areas, tribals following old traditions. So you can answer the second question now. Yes. Third question, tourism of Chhattisgarh is neglected because of, and the options are: dense forest and Nakshal conflict, negative media coverage and vibrant culture and dense forest, Nakshal conflict and negative media coverage. Yes, so you can answer the third question now and we'll see the results. Yes, you can see the results. The first answer is agriculture. The second answer is depends on monsoon for rain. And the third answer is Nakshal conflict and negative media coverage. Yes, thank you. Thank you. So, what does Gyan Setu actually do? As I said above, we go to different developmentally challenged states and try to work with them to build the bridge of science. So, one such state that we are talking about here today is Chhattisgarh. And we go there and work with two organizations, that is Shikshart and Bachpan Banao. So now we'll see a video wherein he shares his experience of Sukma with us. Sumit. Hello friends, this is Sumedh. I'm here to share my experiences of Sukma tour. I got this opportunity to go to Chhattisgarh Sukma in November 2017. It was my first experience to live away from home and especially out of the comforts which we have at our home. So indeed it was a challenge. I have a galore of memories to tell you, but I've selected a few because of the time constraints. We have come across the word technology, and technology as an enabler has become a buzzword today. Technology as an enabler, this buzzword we felt there in Sukma. First time when we went and met with the students, they didn't know where Pune was. So we told them even on the map, but still they were not able to understand. So we finally told them about the movies and the Bollywood star which they see on TV live in Mumbai, and Pune is a city which is located near Mumbai. After this, they were able to relate to some extent to where Pune actually was. The movies which they saw on TV, especially Bahubali, Ghazi Attack, helped us also to explain the concepts like projectile or submarine. Thus, technology is really an enabler, which we felt over there. One more experience I'll tell you, that the word poverty, whenever we think of the word poverty, certain images come to our mind, especially of malnourished children or a person who's sitting on a road and having no income in his hand at all. But the type of poverty which we actually saw there was lack of access, not lack of resources. The people had sufficient amount of income for their sustenance, but lack of access was an important factor which made them poor. Lack of access to public infrastructure due to the antisocial elements present over there. But one most important factor was lack of access because of a prejudiced mindset of the people living outside the area, like we all possess, because of which they are stigmatized and certainly are always seen with a prejudiced attitude. The third experience which I want to share, which really made me move, and there are some experiences which you never forget for your life. This is one of them. We always think that whenever we plan a trip, it will 100% get successfully executed. But this seldom happens, but most of the times there are some glitches. But in our case, the plan flipped on its head. The plan exactly flipped on its head. We planned to go to Sukma, teach the students, go on a small tour, and then go back to Pune via Hyderabad. But due to certain activities by the antisocial elements, a day before when we had to start our returning journey, we had to completely abandon the route. We had two options, either to go by Odisha to Hyderabad
which was indeed a costly, or to go to Raipur, and via Raipur, via Vidarbha, you can go to Pune. So what I learned from this event was some things which are not planned, or they directly hit you on your head while you're on the route. They are enforcing. So these are the test of times which really help you to employ your skills, be patient, and think rather than panicking, or rather than making even others more stressful than you are. So out of a galore of memories I told you already, I have shared just a few of them with you. Also, I would like to thank the ERC department of Jnana Prabodhini for making this available. And also, I wish you a good day. Thank you. Thank you, Sumit. No wonder it was an amazing experience. We were in the same team, and right now the only thing that comes to my mind and heart is to say thank you for Gyan Setu to provide such an amazing platform where we kind of find ourselves in everything. Okay, so I would like to request Vishwesh to take it forward from here now. Thank you. थैंक यू अंजलि। नमस्ते सभी को। आप सबका ज्ञान प्रबोधिनी की ओर से मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ, और अब तक देखे हुए वीडियोस और पोल्स के माध्यम से आपका प्राथमिक परिचय छत्तीसगढ़ से जरूर हुआ होगा। ज्ञान प्रबोधिनी के अलग अलग विभागों का विभिन्न राज्यों में हर साल दौरे जाते हैं। जिस तरह आप में से कई लोग देश के विभिन्न राज्यों में ज्ञान सेतु के माध्यम से गए हैं, ठीक उसी तरह सन 2017 में ज्ञान प्रबोधिनी के युवक विभाग यानी कि यूथ विंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में एक दौरा हुआ था। उस दौरे के बाद सहभागी युवकों के मन में विचार आया कि अगर इसी तरह के दौरे हम नियमित दौर पर छत्तीसगढ़ में करेंगे तो हम छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी जनजीवन और नक्सलवाद का प्रश्न अधिक विस्तृत तरीके से समझ पाएंगे। तो यही हेतु लेकर पिछले 4 साल से छत्तीसगढ़ में नियमित दौरे हो रहे हैं। तो इन दौरे में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं, ये सब जानने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्ञान प्रबोधिनी की ओर से राष्ट्रीय एकात्मता यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन करने के हेतु ये सब दौरे आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इन दौरे के दरमियान अलग अलग कार्यकर्ताओं को, हमारे जैसे युवकों को विभिन्न अनुभवों के द्वारा हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका एक वैयक्तिक उद्देश्य भी प्राप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार के अनुभव और किस प्रकार के उद्देश्य हमारे अलग अलग युवकों को प्राप्त हुए। सभी को नमस्ते। मैं सुमित पाटिल। मैं दिसंबर 2019 से एजुकेशनल कैंप के माध्यम से बीजापुर जा रहा हूँ। मुझे याद है कि हम बेंगलुरु गांव में नामकरण समारोह के लिए शामिल हुए थे। गांव वालों से बातें करते समय मराठी और हल्बी भाषा में काफी सारे शब्द समान हैं, यह बात मुझे पता चली। हमारे सारे राज्य एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इस बात का मुझे एहसास हुआ। हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता समझने के लिए ऐसे कैंप में जाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीरंग टोपे 2016 में अपने दोस्तों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा इन जिलों में जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। सुकमा शहर से करीब लगभग 6-7 किलोमीटर पर निरगुंडी पारा करके एक गांव है। शायद आज भी उस गांव में कोई वाहन न जाता होगा। पैदल ही हमें जंगल से रास्ता गुजरना पड़ता है। हमें लगा भी नहीं था कि यहाँ पर शायद कोई पाठशाला होगी, लेकिन हमारे आश्चर्य पर वहाँ पे पाठशाला थी, शिक्षक भी थे और बच्चे भी पढ़ रहे थे। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी वहाँ के शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चे शिक्षा का लाभ ले पाते थे। ये दृश्य हमें बड़ा ही प्रेरणा दे गया। बस्तर की पहाड़ियाँ, नदियाँ और निसर्ग सौंदर्यता और उससे भी ज़्यादा वहाँ रहने वाला इस भारत भूमि पर का विशाल समाज, उसके प्रति एक लगाव सा लग गया और इसी लगाव को बढ़ाने के लिए मैं वापस जरूर बस्तर जाना चाहूँगा। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मैं निखिल बीरमल पेशे से अध्यापक हूँ। दिसंबर 2019 में एक अध्ययन शिविर हेतु मुझे बस्तर छत्तीसगढ़ जाने का पहली बार मौका मिला। इस शिविर दौरान मैंने वनवासी जीवन नज़दीक से देखा और समझा। शिविर के दरमियान वनवासी छात्रों का अध्ययन किस तरह किया जाए, इस बारे में मेरी सोच और ज़्यादा स्पष्ट हुई। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम अपूर्व दामले। मैं 2019 साल में मई और दिसंबर महीने में एजुकेशन कैंप के द्वारा बस्तर में गया था। उस दौरान सुकमा जिले के हलबारस गांव में जब हम गए थे, तभी उधर के गांववासियों ने हमारा बहुत अच्छे तरह से स्वागत किया था। पानी से हमारे पैर धोकर हमको गांव में प्रवेश करने दिया था। इस वजह से मुझे एक बात याद आई कि संस्कृत भाषा में कहावत है, अतिथि देवो भव, मतलब हमारे मेहमान है वही हमारे भगवान है। ये बात सच है कि शहरी इलाकों में ये प्रमाण कम हुआ है, लेकिन भारत में ऐसे कई राज्य हैं, ऐसे कई गांव हैं, वहाँ मेहमानों की बहुत अच्छी तरह से हिफाजत की जाती है। हमारी ये जो संस्कृति है, इसमें बहुत समानता मुझे दिखी और यही बात मुझे बहुत पसंद आई और इसीलिए मैं बस्तर में जाना पसंद करता हूँ। धन्यवाद। यह अनुभव सुनकर निश्चित भी आपको बस्तर यानी कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ जाने का मन कर रहा होगा। तो ये जो हमारे अनुभव थे वो कुछ चंद दिनों के दौरे के बाद और दौरे के दरमियान आए हुए अनुभव थे, लेकिन अभी अगले 20 मिनट में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो पूरे 12 साल के लिए बस्तर में वास्तव्य के लिए थे। जैसे कि हम सबको मालूम है, आज के हमारे गेस्ट स्वामी महेश्वरानंद जी। तो सबसे पहले स्वामी जी, मैं आपका फिर एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ।
हम स्वामी जी से बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप सभी को स्वामी जी का जो परिचय है वो करवाना चाहूंगा। स्वामी जी पिछले 30 सालों से रामकृष्ण मठ से जुड़े हैं। इन 30 सालों में स्वामी जी का ओडिशा, बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ में कार्य रहा है। फिलहाल स्वामी जी कटिहार के रामकृष्ण मिशन के आश्रम के सेक्रेटरी है और जब स्वामी जी 12 साल के लिए छत्तीसगढ़ में थे तब नारायणपुर जिले में जो रामकृष्ण मठ का आश्रम है उसमें स्वामी जी कार्यरत थे। फिर अक्सर हम नारायणपुर, अबुझमाड़ इन जगहों का नाम मीडिया में नक्सलवाद की राजधानी इस रेफरेंस के साथ ही सुनते हैं, लेकिन इसी एरिया में पिछले 30 सालों से रामकृष्ण मठ का सामाजिक कार्य शुरू है। तो मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि अगले 20 मिनट में वहां पे रामकृष्ण मठ का क्या कार्य शुरू है और चलता आ रहा है और उसमें उनके अनुभव क्या थे ये हमारे साथ शेयर करें। नमस्कार। नमश्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिनी तापहारिणे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। हमारे बस्तर की भाषा में जोहर। बहुत खुशी की बात है कि मैं ज्ञान प्रबोधिनी किसी कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, खासकर ज्ञान सेतु का कार्यक्रम है। तो मुझको सर्वप्रथम हमारे पुंक्षी सर की याद आ रही है। मैं उनसे मार्गदर्शन लेता था, उनसे हमारे मार्गदर्शक थे, उनकी भी आदत है। तो उनको याद करके मैं बातें शुरू करता हूँ। आपके जैसे मैं युवा अवस्था में था और जब ज्ञान प्रबोधिनी ग्रंथालय में मैं नेशनल ज्योग्राफी नाम का एक मैगजीन देख रहा था, पत्रिका देख रहा था, और ये पत्रिका उस समय बहुत कम जगह मिलती थी लेकिन हमारे ज्ञान प्रबोधिनी में आती थी। तो उसमें मैंने एक इथोपिया के बारे में लेख पढ़ा और कैसे वहां कुपोषण से लोग मर रहे हैं। विशेषकर उसमें जो फोटो देखा मैंने माल न्यूट्रिशन बच्चों के, और मन बड़ा विचलित हुआ और ऐसा लगा कि कभी ना कभी जीवन में आदिवासियों का काम हमको करना मौका मिला तो हम करेंगे। आगे जाके मैं बस्तर में पहुंच गया रामकृष्ण मिशन के कार्यकर्ता के रूप में। बस्तर कहने से बस्तर उस समय जिला था, अभी बस्तर संभाग कह सकते हैं। 7 जिलों में बटा हुआ है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। कितना बड़ा क्षेत्र है? लगभग 39,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो केरल राज्य से भी बड़ा है। केरल में लोकसभा में 20 सांसद चुने जाते हैं, बस्तर में 2 सांसद चुने जाते हैं, क्योंकि वहां की जनसंख्या 25 लाख के भी आसपास होगी और केरल की 3 करोड़ के आसपास होगी। तो इतना बड़ा एक क्षेत्र है, 7 जिलों में भी बटा हुआ है। लेकिन जो कि जनसंख्या कम है, तो ये पहाड़ों जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र है। मैं अभी आदिवासियों का आपको वर्णन करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा जीवन आनंद का कोई हो ही नहीं सकता है। इस कार्यक्रम में बोलने का था, इसलिए मैंने वहीं की एक लड़की हमारी छात्रा थी, उसको परसों दूरभाष किया, फोन किया और उससे मैंने बात किया और उसको मैंने प्रश्न पूछा कि आप क्या सोचती है बस्तर के बारे में, बस्तर बोलने से आपके मन में क्या आता है। वह नर्स का काम करती है, हमारे स्कूल की लड़की, 7-8 साल से। तो उसने मेरे को उत्तर दिया कि बस्तर के हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं वो वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान जीते में दे लिव इन प्रेजेंस। कल का क्या है उसकी उनके लिए बहुत चिंता नहीं रहती। आज का खा लिया, सो गए, सुबह उठ के देख लेंगे। इसका मतलब है कि उन लोगों की आवश्यकता बहुत कम है। फिर बस्तर कहने से, आदिवासी कहने से पूरा बस्तर संभागीय आदिवासियों से भरा हुआ है। तो बस्तर के शहरों में भी आदिवासी रहते हैं, बस्तर के कस्बों में भी आदिवासी और बस्तर के गांवों में भी आदिवासी रहते हैं। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये बस्तर के देहातों में रहने वाले, लेकिन अभी उसमें बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। ये सब चीज अभी हर गांव में होगी ऐसा नहीं, लेकिन साधारणतः बस्तर की जो संस्कृति है उसमें हम लोग देखते हैं कि बस्तर के लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम रहने के कारण, बहुत ही आवश्यकता है, मतलब एक सामान्य कपड़ा पहनते हैं, खाने के लिए जो भी जंगल में मिलता है खाते हैं, फल फूल जो मिलता है जंगल में खाते हैं और शिकार करके खाते हैं। अब अगर पूछेंगे कि वो लोग क्या खाते हैं तो मैं बोलूंगा कि क्या नहीं खाते हैं।
मतलब बड़ा से बड़ा जानवर बैल से लेकर फिर मयूर को भी खाते हैं और फिर चूहा को भी खाते हैं और सिर काट के सांप को भी खाते हैं। तो जंगली सब जानवर लगभग वो लोग खाते हैं। और जो थोड़ी बहुत खेती करके उसमें उपज आता है उसमें खाते हैं। आवश्यकता चीज उनको बाजार से लाते हैं सप्ताह में। उनके लिए बहुत बड़ी कीमती चीज कौन सी होगी, तो ये नमक है। नमक वहां नहीं मिलता है, नमक और तेल बहुत कम व्यवहार करते हैं, लेकिन तेल। तो इन लोगों की जीवन शैली ऐसी है। छोटा सा घर है, कपड़ा भी बहुत तन ढकने लायक है। इस नमक लाने के लिए या बाजार जाने के लिए आज भी बहुत सारे बस्तर के इलाके हैं जहां लोग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 30-35 किलोमीटर तक पैदल चले जाते हैं। और ऐसे जगह हैं जहां 4 महीनों में कोई आदमी जा ही नहीं सकता है, पहुंचविहीन रास्ते जगह। तो उनको 4 महीने का सब सामान अपने पास रखना पड़ता है। तो ये बस्तर का लोगों का जीवन देख सकते हैं हम लोग। खेती करते हैं थोड़ा बहुत। पारंपरिक ये लोग जो खेती करते थे उसको पेंदा खेती कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन कहते हैं। एक जगह खेती किया कुछ साल और फिर वहां से दूसरी जगह चले गए। मतलब एक जगह जंगल साफ कर दिया, उसको जला दिया और वहां खेती कर दिया। लैंड फर्टाइल है, उत्पादन अच्छा होता है उत्पाद, और दूसरे क्षेत्र में जाते हैं फिर खेती करते मतलब नांगल भी नहीं चलाते ये लोग, हल भी नहीं चलाते थे। कोई बीज का छिड़काव कर दिया और उसमें जो आ गया, जिसको एग्रीकल्चर की भाषा में माइनर मिलेट्स कहते हैं, कोदो, कुटकी, रागी वगैरह, माने मराठी में वरी नाचनी हो सकता है। तो उस प्रकार की जो चीजें वही ज्यादातर खाते हैं। उसका गर्मी में पेज बना के पीते हैं। इन लोगों के त्योहार होते हैं अपने, बहुत सारे त्योहार होते हैं। खासकर जब चावल आता है, मतलब आम भी तोड़ना है तो आम आदमी का पेड़ का नहीं तोड़ता है जब तक आम की पूजा नहीं होती। आम की पूजा करके खाते हैं। धान की फसल आता तो नया खाइए वो त्योहार रहता है, तो उसमें पूजा करके ही धान भी खाते हैं। इन लोगों का एक मेला जैसा रहता है, कक्साड़ कहते हैं, वो साल में होता रहता है। देवताएं इनकी जो है वो देवता पत्थर की मूर्ति या लकड़ी या मूर्तियां, अंगा देव कहते हैं और देव कहते हैं, ये सब उनके त्योहार हैं। लेकिन इस सब में उनके जीवन में एक चीज उनके साथ में रहती है जो जन्म से मृत्यु तक, वो है शराब। किसी भी आनंद के दुख के क्षण में ये लोग शराब पीते। शराब मतलब वहां एक, अभी मैं कुछ वीडियो में एक चित्र देखा, वहां एक पेड़ है, वो पाम फैमिली का आता है, उसको सल्फी कहते हैं। जैसे छीन का पेड़ रहता है वैसे ही, और उसमें हड़ी लगा के उसमें से सीधा आता है। लगभग वो अल्कोहल ही होता है, उसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है। नहीं तो महुआ का पेड़ है। तो ये शराब पीना और नाच गाना करना, आनंद में रहना। ऐसे भी हम लोगों के जैसे क्लब रहते हैं, वैसे पहले घुटुल नाम की व्यवस्था होती है। अभी भी कुछ देहात में है जहां सब गांव के लड़के लड़कियां आती हैं, शाम को वहां रहते हैं, नाच नृत्य होता है, गाना होता है। ये उनका जीवन है। बात लड़कियों का निकली तो यहाँ की महिलाएं बहुत एक्टिव या बहुत काम करने वाली है पुरुष लोगों से ज्यादा। यहाँ तक कि मैं देखता था कि साइकिल चला के महिलाएं गांव में, हमारे खेत में काम करने के लिए महिला साइकिल चला के आती थी। बहुत शौक था उनका साइकिल चलाने का। तो घर का लगभग काम सब महिलाएं करती हैं। लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट में, आसाम वगैरह कुछ जगह में घर की मुखिया महिला रहती, वैसे मुखिया नहीं, महिला नहीं रहती, महिलाओं को वैसे अधिकार नहीं है। लेकिन घर का कामकाज जो है वो ज्यादातर महिलाएं, घर का मतलब खेती का काम भी महिलाएं ज्यादा करती हैं। कुछ काम है वो पुरुष करते हैं। तो इन लोगों का ये ऐसे ही जीवन। अगर बीमार पड़ गए तो गांव में ओझा रहते हैं, ओझा से दवाई लिया, झाड़ फूक करता है, वो कुछ बताएगा, फिर वो बताएगा नहीं एक बकरी देना पड़ेगा, एक मुर्गा देना पड़ेगा, वो भी दिया जाता है और उसी में उनकी बीमारी ठीक हो गई, ऐसे मानते हैं जो होता है। तो बीमारी के लिए उनकी यही उनकी व्यवस्था है। शादियां होती है, शादी के कुछ नियम रहते हैं। शादी करने मतलब शादी तैयार करने के लिए भी जाना है तो घर से शराब लेके जाना है वहां, और ये सब उत्सव होते हैं। उसमें हम लोगों के यहाँ जैसे कुछ मिठाई और कुछ भी खाने का होता है, तो साधारणतः यहाँ बड़ा बैल काटा जाता है और उसको भी खाया जाता है। ये मैं एकदम भीतर के जंगलों में जो बात बता रहा हूँ। अभी बाहर में आदिवासी समाज थोड़ा अलग तरह से काम कर रहा है। पारंपरिक रूप से आदिवासी लोग गैया का दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि उनकी ये धारणा है कि गैया का दूध जो है वो उसके बछड़े के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो उनको गैया का वैसे कोई उपयोग नहीं है उनके पास, क्योंकि खेत में हल भी नहीं चलाते थे तो बैल भी उनको लगता नहीं था। तो गैया बैल उसका उनकी वैसी आवश्यकता नहीं पड़ती है जो हम लोगों को रहती है वैसे। तो इसलिए उसके प्रति उनकी
बहुत उस तरह से ममता या कुछ रहेगा, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों का जीवन है। फिर कुछ मनोरंजन के साधन है उनके, वो लोग नाच नृत्य करते हैं। वैसे साप्ताहिक बाजार में जाते हैं। ये बाजार में एक बड़ी मजेदार चीज है, ये बस्तर के हर बाजार में आपको देखने को मिलेगा कि बाजार लगा रहता है और बाजार के बीच में एक जगह रहती है लकड़ी से घेरी हुई, जैसे आप बॉक्सिंग का या कुश्ती का जो मैदान रहता है वैसे, और उसके बीच में मुर्गा लड़ाई होती है। मुर्गाओं की लड़ाई मतलब मैं गांव से एक मुर्गा लेके गया और कोई लेके आया, और ये मुर्गा के पैर में एक चक्कू जैसा कुछ लगा रहता है, ब्लेड जैसा, और उनकी लड़ाई होती है। एक मुर्गा दूसरे को गिरा देता है, मात्र 5-10 मिनट में हो जाता है ये काम, और जो जीत जाता है उसको मुर्गा मिलता है। लेकिन यहाँ खत्म नहीं होता है। ये जब मुर्गा लड़ाई चलता है, मान लीजिए एक सफेद मुर्गा और एक काला मुर्गा है, तो उसके ऊपर पैसे लगाए जाते हैं, बेटिंग होता है, और वो ये 5 मिनट 10 मिनट के अंदर कई सौ रुपए एक दूसरे के हाथ से इधर उधर हो जाते हैं। तो आदिवासी लोगों के घर में आप जाए तो बच्चों को बीमारी का भी जितना ख्याल नहीं करते हैं, उससे ज्यादा वो अपना लड़ाई का मुर्गा और सेल्फी का पेड़ इससे बहुत करते हैं कि सेल्फी का पेड़ उनको पैसा देता है शराब बेच के या कुछ करके। पहले तो इन लोगों के पास पैसा भी नहीं था, नकदी कैश नहीं थी, तो कमोडिटी एक्सचेंज बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं। बड़ी मजे की बात है कि गांव से वो लोग आ गए और उनकी आवश्यकता मानो नमक है, तो व्यापारी के पास आते थे और तराजू में एक तरफ में व्यापारी उनका जो सामान लाया वो रखता था। मान लीजिए उसने इमली लाया और इमली वहां रख दिया 1 किलो, बिल्कुल उतना ही वजन का वो नमक उनको देता था। अच्छा, किसी ने शहद लाया, हनी लाया, तो शहद भी 1 किलो वहां रखता था और उसके बदले में भी 1 किलो नमक ही मिलता था। थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोइटेशन लगेगा, लेकिन उसके बारे में अभी समय नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की धारणा ऐसी होती है, ऐसा कहने से लगता है तुरंत एक्सप्लोइटेशन होता है। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि इतना करने के लिए भी व्यापारी गुजरात से, मारवाड़ी, राजस्थान से वहां जाके बैठे हैं, इसलिए उनको नमक भी मिल रहा है, तो उनका योगदान एकदम हम नहीं छोड़ सकते हैं व्यापारियों का भी। लेकिन फिर भी ये तरीका था। तो शिक्षा के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं आता है। अभी गाँव में शिक्षा है थोड़ी बहुत। अभी गांव में एक व्यक्ति बहुत बड़ी काम करती है इस आदिवासी एरिया में, यह है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा वर्कर। गांव के लोग उसको मानते हैं। मतलब परंपरा रूप से गांव में बच्चों के नाम रखते थे, वो बच्चों के नाम बड़े अर्थपूर्ण रहते थे। मतलब जिसका नाम अकालू है तो समझ लो कि जिस साल अकाल पड़ा है, ड्रॉट पड़ा है, सूखा पड़ा है, उस साल ही वो जब पैदा हुआ है। और जिस साल अच्छे बारिश हुए तो उस समय सुकालू पैदा होता है, उसका नाम सुकालू रहता है। रविवार को पैदा होने वाली लड़की को इतवारी कहते हैं और सोमवार को पैदा होने लड़की को सोमवारू कहते हैं। किसी लड़के का नाम बाजारू है और उस गांव का बाजार अगर शुक्रवार का लगता है तो समझ लीजिए वो शुक्रवार को हुआ है। लड़की का नाम सोमवती, मंगलदाई, सोमदाई, मंगलदाई, ऐसे लड़कियों के भी नाम होते हैं। तो इसके बड़े अर्थ रहते हैं, गाँव के नाम के भी अर्थ रहते हैं, सबके अर्थ हैं। यहाँ बहुत प्रकार के आदिवासी रहते हैं। सबसे प्रिमिटिव ट्राइब्स में माड़िया ट्राइब है, उसके अलावा गोंड है, हलबा है, भतरी है, और इन लोगों की भाषा मिलती जुलती है लेकिन अलग है। अभी जैसे बातों में कह रहे थे कि हल्बी भाषा ये मराठी से मिलती जुलती है। मतलब अगर शुरू में कहते वहां तो हम कहते कि जोहार दादी। अभी दादी इस शब्द का मतलब मराठी में दादा है, वही शब्द है। हिंदी में दादी का अलग अर्थ होता है, लेकिन हल्बी में दादा। मैं अच्छी छत्तीसगढ़ी बोल सकता हूँ, हल्बी समझ सकता हूँ, लेकिन जिनके पास आप लोग जाते हैं, जिनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ हमेशा, वो हमारे सुनीता ताई और राम सर, गोडबोले सर, ये लोग अच्छी हल्बी गोंडी भाषा बोलते हैं। बहुत कठिन भाषा है, दक्षिण की भाषाओं से मिलता है, लेकिन विगत 25-30 साल बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर मेरे मन में आपके प्रति थोड़ा भी सम्मान हो तो 1000 गुना उनके प्रति रहना चाहिए, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी बहुत सेवा काम करते हैं। मेरे पीछे संस्था सन्यासी है, लेकिन वो लोग बहुत ही काम करते हैं, आदरणीय। तो वो लोग गोंडी भाषा जानते हैं, लेकिन मैं नहीं सीख पाया मेरे को, क्योंकि मेरा काम ऐसा होता था कि इतना मिलजुल नहीं सकता था। मैं लोगों से मिलता था, लेकिन लोग मुझसे हिंदी बोलते थे, तो उनके त्योहार में जाना, मैं सन्यासी करके बहुत सारी मर्यादा आती थी, तो मैं उतना मिलजुल नहीं सकता था। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ मतलब, लेकिन गोंडी भाषा में सीख नहीं पाया। लेकिन इनकी ये भाषा है। ये हो गया आदिवासी लोग, मैं बता रहा हूँ जंगलों में रहते हैं एकदम इसमें। इसके अलावा जो आदिवासी लोग हैं वो थोड़े से कस्बों में रहते हैं, मतलब
जंगल से लगे हुए, लेकिन जहाँ शहर के रास्ते पहुंचे हुए हैं। घर का कोई एक आध सदस्य है, वो कोई नौकरी करता है, पैसा कमाता है, इस तरह से जो है। तो उन घरों में बहुत सारा आदिवासी संस्कृति मिलेगा, लेकिन उसमें शहर का संस्कृति भाई कुछ अंग। ये मैं बता रहा था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का इतना प्रभाव है कि अभी बच्चों के नाम भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रखते हैं, इसलिए अभी दीपक, संदीप ऐसे बच्चों के नाम आ गए हैं। नहीं तो पहले ही बच्चों के नाम नहीं थे, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कहेगी वही लोग मानते हैं। कुछ भी एप्लीकेशन करना है, कुछ भी करना है, पहले जैसे गाँव में गुरुजी हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे महाराष्ट्र में और दूसरी जगह, लेकिन यहाँ अभी आदिवासी क्षेत्र में बहुत जंगलों में जाके काम करने वाली जो दीदी रहती हैं, शहर से या थोड़ा सा गाँव से आती है, कभी कभी उसके पास मोपेड वगैरह रहती है, छोटी सी गाड़ी रहती है, और नहीं तो साइकिल में आती है, पर्स रहता है, तो बड़ा उन लोगों को विशेष लगता ही है। तो ये महिलाएं बहुत बहुत मतलब बहुत ही काम करती है। मतलब सरकार की जो योजना है उसको ठीक ठीक क्रियान्वित करने का सबसे बड़ा दायित्व किसका होगा, तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का है, और ये बहुत बड़े काम करते हैं। तो इनके माध्यम से गांव का विकास असल में हो रहा है, आदिवासियों का विकास। जितनी बाधाएं हो, कुछ भी हो, बारिश हो, वो पहुंच जाती है गाँव में। खासकर महिलाओं का जो बच्चे पैदा होते हैं, बीमारियां रहते हैं, तो उनकी बहुत सारी देखभाल ये लड़कियां करती हैं या महिलाएं करती हैं, और उनका योगदान इसमें अभी बहुत है। मतलब मैं इसलिए, और उसमें से बहुत से उस क्षेत्र में आदिवासी लड़कियां ही हैं। तो ये आदिवासी लड़के जो शहर के पास रहते हैं, थोड़ा सा गांव से थोड़ा शहर के बीच में रहते हैं, वो लोगों को थोड़ा खेती अच्छे करते हैं, खेती में कोई सुधार है, लेकिन बहुत सारे त्योहार ये सब जो है वो वैसे ही उनके रहते हैं, गांव के जैसे रहते हैं। लेकिन जो एकदम शहर में रहते हैं, वो ज्यादातर लोग शहर जैसे रहते हैं, गांव में बीच बीच में जाते रहते हैं। गांव में जाना भी उनके लिए दिक्कत रहता है, क्योंकि गांव की रहना उनको असुविधा लगता है। तो ये है। अभी इसमें कोई सामने प्रश्न पूछा था औद्योगिक वहाँ की स्थिति के बारे में, तो सब मैं जो कह रहा हूँ, जिस क्षेत्र में कह रहा हूँ वहाँ तो बहुत सारे कारणों के कारण, जिसका मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ का आतंकवाद और ये है, वहाँ सरकारी योजनाएं नहीं जाते, तो वहाँ उद्योग धंधे कहाँ से आएंगे, प्रश्न पूछ रहे। तो उद्योग धंधे बहुत नहीं है उस क्षेत्र में। कुछ शहरों में है, मतलब बस्तर में जैसे जगदलपुर वगैरह में है थोड़े बहुत, लेकिन बाकी व्यवसाय उद्योग धंधे बहुत ही कम है। वहाँ का एक बड़ा व्यवसाय है, आप जानते हैं, जो बीड़ी बनता है, तेंदू पत्ता कहते हैं। ये तेंदू पत्ता वहाँ का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। ये बाहर के व्यापारी जाके वहां से करते हैं। उसमें आदिवासियों को बहुत पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। आदिवासी लोग जब गांव में आते हैं, बाजार में आते हैं, तो बाजार में जब आते हैं तो उनके पास आप कोई भी बाजार के पहले जहाँ बाहर, गांव के बाहर में देखेंगे, जहाँ बाजार लगता है थोड़ा सा बड़ा गांव में, तो उसके गांव के बाहर में कुछ लोग बैठे रहते हैं, व्यापारियों के दलाल रहते हैं। तो ये लोग हैं, ये जो आदिवासी ने उनके उत्पाद लाए उसको खरीद लेते हैं, और बहुत ही कम दाम में मतलब खरीदते हैं उससे। मतलब अब कुकुन जो रहता है, जिससे रेशम बनता है, उसका रेशम का कीड़ा रहता है, और वो जो बनाता है, तो एक कुकुन में 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर भी ये निकल सकता है रेशम। लेकिन मैं जब था वहां, 1 रुपए में 3 खरीदा था, अभी 10 रुपए में खरीदते होंगे, तो उसका कितना दाम होता होगा। और वो 1 2 3 खोजने के लिए वो लोग कितना जंगल में घूमते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। तो बहुत मेहनत करके लाते हैं उनको उत्पाद, ये खरीदते हैं, ये उनका आय का एक स्रोत रहता है, मतलब ये बेचकर। अभी किसी ने ये भी प्रश्न पूछा, खैर प्रश्न बाद में लेना, लेकिन सामने दिख रहा है करके मैं बोल रहा हूँ कि आरोग्य की स्थिति, तो आरोग्य की स्थिति तो बहुत खराब है वहाँ लाइफ स्टाइल। इसलिए मैं बताया कि पहले आप अगर ये सब सोचेंगे तो कितना अच्छा लगेगा कि कल की चिंता नहीं करने वाले। हम में से भी बहुत सारे युवा, आप नहीं है, लेकिन कल की चिंता करते ही नहीं है, आज का दिन काट दिया आनंद में। तो वो लोगों का जीवन वैसा ही है, आनंद का जीवन। लेकिन ये आनंद के पीछे आप वहाँ के बच्चों को देखेंगे, तो मैं जो जीवन में पहली बार चित्र में देखा था, मुझको लगा था कि अफ्रीका में जाके मैं काम करूंगा, उससे भी गए बीती स्थिति हमारे देश में पहली बार मुझको पता चला, मैं जब वहां गया तो माल न्यूट्रिशन बड़ी समस्या है, कुपोषण। बच्चों को, आप कुपोषित बच्चों को देखिए तो बड़ा पेट रहता है, हाथ पैर थोड़े छोटे रहते हैं, तो ये अवस्था उनकी है। और दवाइयों के लिए वो अभी आते हैं, लेकिन बहुत कम। जिस क्षेत्र में हम काम करते थे उसको अबूजमाड़ कहते हैं, ये लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर अनसर्वेड लैंड ऑफ इंडिया। इसका कोई सर्वे नंबर नहीं। आप कहीं भी शहर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, हर जमीन को एक नंबर रहता है सरकारी, लेकिन वहां कोई सर्वे हुआ नहीं है। तो ये इस क्षेत्र में लगभग सब काम, सरकारी काम नहीं चलता था,
इसलिए रामकृष्ण मिशन करते। हमारे हेल्थ वर्कर है रामकृष्ण मिशन का, वहाँ 35 बेड का अस्पताल है जहाँ रोज ऑपरेशन सर्जरी होता है। और लेकिन ये इतना बड़ा क्षेत्र का छोटा सा है, इसलिए मैं उस काम को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उससे धारणा होगी कि सब जगह ऐसा होता है। तो मैं ये नारायणपुर का एक विशेष भाग की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप जो नाम सुनते हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा, कांकेर, कोंडागांव और ये सब जगह है, वहाँ स्थिति और अलग है। मतलब तो बहुत अस्पताल, ये सेवाएं, अभी तो कोविड में आपको पता चला कि पुणे के पास 40 किलोमीटर गांव में भी बहुत सारी अच्छी नहीं है, तो वहां तो अब पूछिए मत, सेवा नहीं है और लोग चाहते भी नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं है उसकी। हाँ, अभी बच्चों जैसे शिक्षा, लेकिन शिक्षा के प्रति उन लोगों की लालसा बड़ी है। शिक्षा, बच्चों को पढ़ाने वो लोग चाहते हैं। दुर्भाग्य से कुछ कारण ऐसे हैं जिससे वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं। और बहुत सारे आदिवासी बच्चे आके समाज में निकल रहे हैं। हम जहाँ काम करते हैं, हमारे स्कूल से कोई भी 10वीं का लड़का आतंकवाद में नहीं गया। लगभग 250 से 300 हमारे छात्र ये शिक्षक के रूप में इस क्षेत्र में काम करते हैं। उन्होंने अगर हायर एजुकेशन लिया तो बाहर जाते हैं, लेकिन वो कम शिक्षा करके तुरंत नौकरी में लग गए। पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन एक आदिवासी बच्चा जिसको खेल कूद, स्वामी विवेकानंद जी के विचार जानते हैं, ऐसे बच्चे शिक्षक के रूप में वहां काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का बहुत अच्छा रुझान है। रामकृष्ण मिशन छोड़ के भी बाकी जगह में बच्चों की लालसा, आप लोग जाते हैं, आप लोग देखे हो कि इतने लालायित रहते हो बच्चे लोग से इस काम के लिए। तो ये उन लोगों का साधारण एक जीवन है, इनका जीवन। तो दूर से देखने से लगता है बहुत अच्छा जीवन है। और किसी एक अधिकारी को एक बार लगा भी ऐसा कि उनको कहना था कि इस जंगल में रास्ते क्यों बनाएंगे, क्योंकि आदिवासी जीवन है तो उनको वैसा ही रहने दो। वैसे ही रहने दो मतलब माल न्यूट्रिशन, बीमारियों से पड़े हुए, एवरेज स्पैन लाइफ 50 या कुछ 50 साल का आदमी एकदम बूढ़ा जैसा लगती है, औरत बूढ़ी जैसी लगती है। बच्चे कितने होते हैं लेकिन जीवित कितने रहते हैं। तो उसको हम आनंद का जीवन नहीं कह सकते हैं। और उनको समाज लूट रहा है और वो लूटे जा रहे हैं, तो उसको हम आनंद का जीवन नहीं कह सकते हैं। तो उस तरह से, उसी उद्देश्य से हम लोग जब काम में गए थे, तो बड़े सरकारी IAS ऑफिसर एक थे जिन्होंने इस काम के लिए थोड़ा सा पहले नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने उस समय रास्ते वगैरह बनाने के लिए मना किया। आज क्या स्थिति हो गई हम जानते हैं, रास्ते नहीं बना के हम नहीं गए तो कोई गया। एक बात ये भी आती रहती है हमेशा कि हम लोग जाते हैं या ये लोग पढ़े लिखेंगे तो इनकी संस्कृति बदल जाएगी। तो मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि संस्कृति कोई एक तालाब नहीं है या पौंड नहीं है। संस्कृति एक नदी है, फ्लोइंग है, वो बहती रहती है, वो कोई एक जगह स्थिर रहने वाली नहीं है। तो आप नहीं बदलने से संस्कृति आदमी की बदलने वाली है। कोई किसकी संस्कृति बदलती है। मैं हमेशा वहां लोग आते तो उनको पूछता था कि आपके बच्चे आपके माँ को क्या कहते थे, तो माँ कहते थे। आप बच्चे माँ को क्या कहते हैं, माँ कहते। आपके बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी कहते हैं। तो संस्कृति बदल गया। आपके बच्चे पढ़ के लिख के कहाँ हैं, तो कोई दिल्ली चला गया, कोई और कहीं चला गया, और कोई तो अमेरिका में भी चला गया। तो आप लोग सब अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर जाएंगे और हम ऐसा सपना देखेंगे कि आदिवासी लोग हैं वहीं गांव में रहे, वो अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो बाहर जाएंगे। तो ये सोच थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि आदिवासियों को भी विकास से अधिकार है। बल्कि वो बाहर आने से उनमें से कोई अधिकारी बना, कुछ बना, तो उस क्षेत्र का और अच्छा विकास वो कर सकते हैं और समाज में कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर संस्कृति नहीं बदलने तो और कोई जाके संस्कृति बदलेगा। तो संस्कृति बदलना मतलब संस्कृति में उनके जो पूजा पाठ नियम जो, उसमें कोई दखल देना नहीं। संस्कृति मतलब उनको कुछ नैतिक चीज सिखाना, अच्छी चीज सिखाना और समाज में मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना। हाँ, उसमें कुछ डिसएडवांटेज अवश्य है। मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चे अगर विदेश में जाते हैं तो उसका डिसएडवांटेज है ही, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो जाना नहीं चाहिए। तो उस जाने से जो अच्छे हम उनको संस्कार करेंगे, तो हमारे ज्ञान प्रबोधिनी कितने विद्यार्थी विदेशों में हैं, लेकिन वहां रह के भी इस देश के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं, तो हम संस्कार करके उनको छोड़ेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। तो हम लोग ये कहते हैं कि संस्कृति बदल जाएगी, ये भी एक धारणा रहती है लोगों की। तो मुझको लगता है ये धारणा भी ठीक नहीं है। बाकी मुझको लगता है समय खत्म हो गया होगा। बहुत सारी बातें 20 मिनट में बताना मुश्किल है। मैं 11 साल वहाँ 12 साल था और उसमें से ज्यादातर काम मेरा सीधा लोगों से काम करने का मौका मुझको मिलता। लेकिन यही थोड़ी सी बातें हैं, और कुछ समय होगा तो उसमें प्रश्न पूछेंगे आप लोग, उसमें मैं उत्तर दे दूंगा। जी धन्यवाद स्वामी जी। तो अभी हम प्रश्नोत्तर की सत्र के ओर बढ़ेंगे। तो
पहला प्रश्न प्रसाद पवार ने पूछा है। नमस्ते, हाउ डिड यू मैनेज टू एसिमिलेट योरसेल्फ विथ लोकल्स इन इनिशियल ईयर्स? हाँ ये तो सभी काम के लिए, आप कहीं भी काम में जाएंगे तो वहां जाके उसको आदिवासी ने, मतलब एक मजे की बात बताता हूँ कि मैं ज्ञान प्रबोधिनी में कुछ काम करने का मुझको अनुभव मिला, और जब मैं वहां गया तो मुझको लगा कि मुझको तो बहुत सारा मालूम है, हमने ग्रामीण क्षेत्र में काम किया हुआ है। मैं पहली बार बिहार में आया तो मुझको याद है कि हम लोग ज्ञान प्रबोधिनी के ग्रुप के साथ बिहार में यहाँ बाढ़ का काम करने, भूकंप काम करने के लिए आए थे। तो हमको लगता था कि हमको बहुत सारा अनुभव है काम का, लेकिन जब मैं गया तो पहले पता चला कि मुझको वहां से भाषा ही नहीं आती। तो संस्कृति में कोई काम करना है, कहीं जाना है, तो एक शब्द आपको व्यवहार करना है, याद रखिए, हम लोग, आप लोग नहीं। अगर किसी आदिवासी को आप कहेंगे कि आप लोग शराब पीते हैं, बहुत बड़ा गलत बात है, ये खराब बात है, शराब पीने से ऐसा होता है, तो उसको बड़ा खराब लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे कि हमारे आदिवासी लोग जो है ना वो बहुत आगे जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा शराब पीते हैं, तो हमारे अगर लोग शराब नहीं पियेंगे ना तो हम कितना विकास कर सकते हैं, तो उसको ये बात समझ में आएगा। तो आपको उनका होना पड़ेगा, ये कहीं भी, ये मैं बस्तर में नहीं कर रहा हूँ, अब बिहार में काम करने आए या गुजरात में कई काम के लिए गए और वहां रह रहे हैं, तो आपको ये हमेशा आप महसूस करना चाहिए कि हम उनमें से एक हैं। अगर हम उनको आप अन्य लोग दूसरा समझने लगे तो किसी को नहीं, किसी, मतलब अगर मैं बिहार में लोगों को बताऊंगा अरे यहाँ बहुत बेरोजगारी है, यहाँ कुछ विकास नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अगर उनको कहूंगा देखो हम लोगों के बिहार से कितना गुजरात आगे गया, कुछ हो गया, तो वो जो है उस तरह से हमको लोगों में धीरे धीरे अपनापन लाके उनसे मिलके काम करना पड़ता है। ये मैं ज्ञान प्रबोधिनी में सीखा, वहां जाके नहीं सीखा, लेकिन वहां जाके मुझको पता चला कि बहुत सारे स्किल मुझको मालूम थे, उससे भी ज्यादा मुझको सीखना पड़ेगा। मैं इसी कपड़ा पहन के रोज 70-80 किलोमीटर जो मोटोक्रॉस करते वैसे मोटरसाइकिल चलाता था पहाड़ों में, मेरे साथ, क्योंकि वहां कोई गाड़ी जाती नहीं दूसरी, तो ये भी उस तरह से मोटरसाइकिल चलाना भी एक स्किल मुझको सीखना ही पड़ा। मेरी बात होगी जी, मुझे लगता है अपूर्वा के प्रश्न का भी उत्तर आपके यही प्रश्न के उत्तर में आया था। तो अगला प्रश्न और एक प्रश्न हम लेंगे। ओमकार दादा ने प्रश्न पूछा है, अबूझमाड़ के जंगल में रामकृष्ण मिशन के लोग ही अंदर जा सकते हैं, बाहर से कोई अंदर नहीं जा पाते, आपको क्यों वहां अंदर आने देते हैं? एक तो पहली बात बताता हूँ कि हमारे शासकीय कुछ नियम हैं और शासन ने ये संस्कृति वहां की प्रिजर्व करने के लिए, जीवित रखने के लिए, अबूझमाड़ नहीं, अंडमान के भी कुछ क्षेत्र हैं जहां बाहर से जाने के लिए लोगों को मना कर दिया है, और इसलिए जिसको काम करना है वहां शासकीय कुछ अनुमति लगता है, लेकिन रोज हमको कोई पूछता नहीं है। लेकिन रामकृष्ण मिशन को, हाँ, अभी रही बात की रामकृष्ण मिशन को दो चीजें, मतलब एक चीज है कि आदिवासी क्यों पसंद करते, तो उनकी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हैं, और वहां जो कोई नक्सलवाद और आप जो सुनते हैं तो उसमें हम लोग जो काम करते हैं, तो ये रामकृष्ण मिशन शुरू से ही काम कर रहे हैं वहां, बाकी गतिविधियां शुरू होने से, और लोग उसके ऊपर निर्भर हैं। सरकारी यंत्रणा जो है जो रामकृष्ण मिशन की मदद से ही काम करती है, तो इसीलिए रामकृष्ण मिशन को वहां कोई जाने से उन लोगों को बहुत तकलीफ होगा, तो इसलिए कोई रामकृष्ण मिशन को परेशानी वैसे नहीं करते हैं। इसका कभी उत्तर और मैं अलग से दे सकता हूं, लेकिन वो बड़ा बड़ा उत्तर देना पड़ेगा। जी, धन्यवाद स्वामी जी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि टाइम कंस्ट्रेंट को नजर रखते हुए हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे। एक सेकंड, मैं उसके बीच में बस इतना ही बात बताता हूँ जी जी कि मैं ज्ञान प्रबोधिनी हमारी है, फिर भी मैं ज्ञान प्रबोधिनी को और ज्ञान सेतु के सभी लोगों को बहुत मन से धन्यवाद देता हूँ कि मुझको भाषण देने का मौका नहीं दिया, ज्ञान प्रबोधिनी से जुड़ने का और एक मौका मिला। मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। जी, धन्यवाद स्वामी जी। तो अभी अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए आज हमारे कार्यक्रम का कंक्लूजन करने के लिए हमारे साथ बागेश्वरीताई पुंगशे जी है। तो बागेश्वरीताई पुंगशे जी का परिचय ऐसा है कि पिछले 40 सालों से वो पुणे और भारत के कई इलाकों में सामाजिक कार्य कर रही है। पुणे में ज्ञान प्रबोधिनी और स्वरूप वर्धिनी के माध्यम से बागेश्वरीताई काम कर रही है, और
पुणे में ग्राम विकसन और जो पुणे में बस्तियां रहती है वहाँ भी भाग्यश्री ताई का काम चलता है। तो मैं भाग्यश्री ताई को विनती करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम का कंक्लूजन करें। नमस्ते। अभी मैं सुन रही थी स्वामी जी को, और जितना मुझे मालूम है स्वामी जी से बहुत बार बात करने का मौका मुझे मिला है, उनका काम भी मैंने नजदीक से देखा है। तो 20 मिनट में उनको उनके सारे जीवन का जो अनुभव है उसका निचोड़ बताने के लिए अगर हम कहेंगे तो वो सरासर अन्याय है ऐसे मुझे लगा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें हमारा परिचय, हम सब सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने वाले जो भी आप सब युवा हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। कोई ना कोई कभी ना कभी कोई छत्तीसगढ़ में गया है। ज्ञान प्रबोधिनी के जो बच्चे हैं वो सब युवा हैं, वो 8-10 बार वहां जा चुके हैं और उन्होंने ऐसे तय किया है कि छत्तीसगढ़ को लेके हम मतलब विशेष रूप से छत्तीसगढ़ पे ध्यान देके वहां कुछ ना कुछ काम हम करते रहेंगे। तो इस प्रकार मतलब मुझे आनंद होता है कि ये ऐसा काम हम सब कर रहे हैं। लेकिन और हम परिचित भी है वहाँ की जो स्थितियां है उनसे। लेकिन अभी जैसे स्वामी जी ने हमको बहुत अच्छी तरह से बताया कि कितनी सादगी से ये सब वहाँ के लोग रहते हैं और हमें बहुत सारी चीजें उनसे सीखना चाहिए। मतलब ऐसे इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं जहाँ हम सब एक साथ मिलते हैं और किसी का 30 बरस 40 बरस उनका जो काम चल रहा है उसका निचोड़ उनके मुंह से सुनते हैं और उसका थोड़ा सा इस्तेमाल हम हमारे जिंदगी में कर सके, इस हिसाब से उनसे उनका अनुभव पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदान प्रदान की एक हमें एक अवसर मिला होता है। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया कि कितने सादगी से ये सब लोग वहां रह रहे हैं। जब मैं अरुणाचल में थी एक ही अनुभव आपको बताती हूँ। तो मतलब हमें सोचना है, हम वही देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जो दिखता है वो हम देखते नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है पर हमारे मन में कुछ ऐसे लेके जाते हैं हम। और जैसे कि स्वामी जी के बातों में भी आ गया कि हमारे मन में कुछ चीजें पहले से रहती हैं और वो लेकर हम आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं और उसी हिसाब से हम बातें करते रहते हैं। तो उसकी मात्रा, उसका कुछ उपयोग नहीं है। मतलब एकदम जिसको पूर्वग्रह कुछ भी न हो, मतलब प्रेजुडिसेस कुछ मन में नहीं न लेके अगर हम वहां जाएंगे और जो दिखता है वो देखेंगे तो हम अच्छी तरह से काम कर सकेंगे, ऐसे मुझे लगता है। जैसे कि मैं अरुणाचल में गई थी तो मैंने देखा कि इदुमिश्मी इलाके में भी थी। तो मैं एक लड़की से मेरा परिचय हुआ तो उसके घर में जाते जाते वो बात कर रही थी कि अरे दीदी देखो ना, हमारे घर में अभी यहाँ से दिख रहा है, मान लीजिए कि वहाँ आम का एक कुछ पत्ते हैं जो उसके घर के दरवाजे के ऊपर लटकाए हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई अभ्यागत, कोई गेस्ट, कोई मेहमान हमारे घर में आया हुआ है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने बोला हाँ यही है, हमारे यहाँ का रिवाज ही ऐसा है। अगर कोई किसी दिक्कत में है, समझ लीजिए कि बाढ़ आ गया है, बहुत बारिश हो गई है, लैंडस्लाइड हुआ है, और अगर कोई आदमी या औरत वहां से जा रही है और उसको कुछ दिक्कत है तो वो हमारे यहाँ आ जाती है और वो पन्ने जो है वो हमारे घर के दरवाजे में वो लटका देती है, ताकि हमें पता चलता है कि कोई दिक्कत में है और उसको मदद की जरूरत है। तो हम तुरंत उनको अंदर लेते हैं। तो मतलब मुझे आपसे ये विनती करनी है कि हम मन में ऐसा कुछ लेके किसी भी जगह में न जाए कि क्योंकि ऐसे गरीबी, सोच, शिक्षा, पहुंच, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इम्पोर्टेंट रोल जो है विकास में, ऐसी चीजें हम सब लेके हमारे मन में वहां जाते हैं। जैसा अभी स्वामी जी ने कहा, तो ये लेके जाने से हम मतलब हमारी सोच कम कर रहे हैं, ऐसा मुझे उस लड़की के साथ बात करते हुए मतलब मेरे ध्यान में आया। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हम
एकदम मतलब सोच के नहीं करते, वो ऐसे हमारे हाथ से हो जाती है। तो बहुत ध्यान हमें रखना चाहिए कि जो हम देखना चाहते हैं वो न देखें, जो वहां हो रहा है वो देखने का प्रयास करें, जो वहां सुनाई दे रहा है वो सुनने का प्रयास करें, क्योंकि हम देखते भी वो है जो हम देखना चाहते हैं, सुनते भी वो है जो हम सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम गए, मुझे ऐसे लगता है मित्रों, में सबसे ऐसे विनती करूंगी कि हमारा जो जीवन है जितना छोटा सा भी हो, जितना भी हो, हमारी जितनी भी बुद्धि है उससे हम काम करें, लेकिन हमारा एक का जो अनुभव है वो काफी नहीं होता। इसलिए स्वामी जी जैसे अनुभवी लोगों को हम यहाँ बुलाते हैं और उनका मतलब 40 सालों से जो अनुभव वो ले रहे हैं उसका निचोड़ हम ले लेते हैं। तो इस ऐसे जो ये जो प्लेटफॉर्म है, जो व्यासपीठ है, इससे हमें अलग अलग जगह में काम करने वाले हैं। बचपन बनाओ के अगर प्रतीक दादा है या कोई और कार्यकर्ता है जो लगाव से वहां जिंदगी भर काम कर रहे हैं, तो उनसे ये सब बातें सीखनी है और वो उसका प्रयोग हमें हमारे काम में करना है। हम कहीं भी है वहां हमें करना है। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि हम ये सब चीजें सुने और ये सब हमारे जीवन में कैसे लाए इसके लिए प्रयास करें। जो एक बार गए हैं वो बार बार वहां जाए, वहां की दिक्कतें, वहां के प्रश्न, जो जितना भी हमारे मतलब हमारी जितनी भी सोच है, समझ है, उसके साथ उसका कुछ हल निकालने का हम प्रयास करें। तो तभी इस प्रकार के मतलब स्वामी जी के ये जो उन्होंने बताया कि वहां का सब उनका जीवन जो सादगी है, जो कम से कम उनके यहाँ मौजूद होने वाले जो रिसोर्सेस है वो सबका वो कैसे उपयोग करते हैं और अच्छी तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम वहां जाए और वहां जाकर काम करें। इस प्रकार का अगर हम मन में ठान लेते हैं तो मुझे लगता है कि स्वामी जी ने जो 2 बातें बताई उसका कुछ उपयोग हम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद भाग्यश्री ताई। भाग्यश्री ताई और स्वामी जी ने जो भी हमें मार्गदर्शन किया है वो अगली बार जब भी हम कोई भी स्टडी टूर पे जाएंगे तो ध्यान में रखेंगे, ऐसा मैं आश्वासन भाग्यश्री ताई और स्वामी जी को देता हूँ। आप सभी ये सेशन के लिए उपस्थित रहे, इसके लिए ज्ञान प्रबोधिनी की तरफ से सभी को धन्यवाद। यहाँ पे मैं अपना कार्यक्रम इसी क्षण को समाप्त होता है ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सत्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं। शौर्यज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुण्यकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्।